Now recording started. Okay. Good morning, all of you. Good morning, sir. Okay, Good morning, now we can sir. see 36 participants. Let's start our class now. So we are studying narration chapter. In a narration, we had finished 4 type of sentence. Still, some of the students have a doubt. Clear? So let us see. In narration chapter, ध्यान दोगे बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन खोल रखा है, उसमें हम देख रहे हैं इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ विच सेंटेंस? एनीबॉडी देख करके Sir, box A is direct speech and box yes, B is now look indirect. here, study we are studying in this. कल हम देख रहे थे वुड कटर और किसके बीच का कन्वर्सेशन है? इट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन whom and whom? Woodcutter and river god. River god. All of you know there that in this sentence reporting verb is not there. Reporting verb की जगह wood cutter और river god को रखा गया है. And according to the sense of the sentence, we have to find it if it is a interrogative, if it is a imperative, if it is a direct sentence. Assertive. Is it? So now, अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कन्वर्सेशन में देखो, वुड कटर रिवर गॉड माय एक्स हैज फॉलन इनटू द पॉन्ड. Whenever you are reading this sentence, listen student, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? Which mark is there? Full stop. Punctuation, full stop. It means what? Full stop. इसका मतलब क्या है? फुल स्टॉप है, इसका मतलब कि उस सेंटेंस में क्या चीज है? Assertive. Assertive. Good. Again, find out. Can you bring it out? Which mark is here? Interrogative. The question mark. Interrogative. Interrogative mark. Interrogate. तो यहाँ तक तो क्लियर था आपका कि जब कभी भी सेंटेंस, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इन अ assertive sentence, simple sentence, if the sentence is in a present tense, we will change into a past tense if the reporting verb is in a past. Suppose for example, woodcutter said to river god. Woodcutter said to river god. What it means? कौन सी टेंस है ये? प्रेजेंट या पास्ट? Present. Past. The present. said to लिखा हुआ है ना बेटा, तो पास्ट होगा वहां. तो अब वहां पर देखेंगे my ex has fallen. All of you know there that has fallen. कौन सी टेंस है ये? Past. Past perfect. Has fallen. Has है या Present has है? perfect. Present Present perfect. perfect. Good. Present Present perfect. 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 तो present perfect will change into past perfect. तो आप नीचे में आप देखोगे, look here, had fallen चेंज हुआ है. Yes, sir. क्लियर है? रूल के अनुसार है. इफ said to के Yes. जगह सेज होता, then sentence का tense will remain same. In a sage or in a universal truth. Suppose for example, sun rises in the east. सूर्य कहाँ उगती है? East. East. अगर आप East. कह देते, suppose for example, if you will say sun was risen या sun rised या rose in the east, तो क्या कल के बाद सूर्य नहीं उगेंगे? Sir उगेंगे. उगेंगे ना? Of course. Suppose for example, another example, water boils on 100 degrees Celsius. पानी कितने डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है? 100 degree. 100 degrees Celsius. ये साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रूथ है. Yes, sir. Yes, Another sir. example, Himalaya sir. lies in the northern part of India. हिमालय कहाँ राइज है? कहाँ लाइज है? Northern part of India. Northern part. अगर Northern हम part. वहां कहते हैं, suppose for example, if we will say there that कि हिमालय was located in southern या फिर northern part of India, तो क्या कल के बाद हिमालय दूसरी जगह आ जाएगा? No, sir. No, नहीं sir. होगा ना? अब समझ में आ रहा है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ Yes, या sir. फिर सेज रहेगा तो उसको हम टेंस को क्या में रखेंगे? प्रेजेंट टेंस में रखेंगे. तो यही चीज यहाँ बता रहे थे बेटा कि अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि सब बच्चों ने कहा कि सर सिंपल सेंटेंस और
किसमें? क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हमें दिक्कत नहीं है। डाउट कहाँ है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव और इंपरेटिव। तो आई होप यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, जैसे देखो, कैन यू ब्रिंग इट आउट। अब यहां देखेंगे ये कैन, तो यू को पहले लाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू assertive sentence. So what is the rule of assertive sentence? Subject plus verb plus object. So you is the subject, and all of you know can will change into. Reply it. Could. Good. Could. Good. Could. All of you know You could modal bring verb it always carry V1. तो आप वहां क्या बोलोगे? You. According to the woodcutter and river god. All of you know. तो river god और woodcutter के बीच में कन्वर्सेशन है, तो he see it. river god एक भगवान है ना, Yes, sir. देवी Yes, देवताओं के एक भगवान के बारे में बात हो रहा है, तो वहां हम क्या लगाएंगे? ही. Yesterday also I told you Yes, that if there is not clarification whether it is a male or a female, you will follow, क्या फॉलो करेंगे? मेल और फीमेल? He. Male. मेल को फॉलो Male. करेंगे, because all of you know that we are living male dominated society. तो उसमें हम ग्रामर रूल में भी मेल को फॉलो करते हैं। आप देखो, रिवर गॉड, गॉडेसेस नहीं है वहां, देवता के बारे में कहा गया है, देवी के बारे में नहीं कहा गया है। तो वहां देखेंगे, द वुडकटर टोल्ड द रिवर गॉड दैट हिज एक्स हैड फॉलन इनटू द पॉन्ड, ही हम्बली आस्क्ड हिम, उनसे पूछ रहा है रिवर गॉड से, इफ, बिकॉज़ ऑल ऑफ यू नो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, तो हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। If So or if whether. he If or could whether. bring it out, the river god asked the woodcutter if his axe was made of gold. तो सारा यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Let's see in the next sentence. अब जो आप कह रहे थे partition, let me enter the participant first. Please student mute yourself. जैसे मिल जाए बहुत दूर तक कमी मिलती Now look here. अच्छा ठीक है, पहले आते हैं पहले में। Let's see. Look here. This one exclamatory बताना है ना बच्चों? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now look here. Yes. अब देखो, एक्सक्लामेटरी में जो बच्चों को डाउट था, ये इंपेरेटिव में देखेंगे, ध्यान से देखोगे यहाँ पे। बी केयरफुल, बिकॉज स्टूडेंट आगे फिर सिलेबस भी बहुत आगे, आप जानते ही हैं लंबा सिलेबस है हमारा। लिसन केयरफुली। आप यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हो, एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस आर चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। आप यहाँ ध्यान से देखोगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और किसको, यहाँ से बेटा जो पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, बी केयरफुल, सो मेनी टाइम आई वार्न यू। सर यहाँ बेटा ये इरेज करें या फिर आप लोग का यही सब तमाशा देखते रहे? क्लियर? Otherwise, I will start teaching you as a lecture method. Be careful. चलिए ध्यान दीजिएगा वहां। Look this sentence. Is it visible to you? Yes. How beautiful Yes. the Yes. painting looks, said Yes. Amit. यही सेंटेंस था ना? अब यहाँ देखो बेटा, Yes. Yes, sir. said Amit, या नीचे वाले सेंटेंस में देखो, हुर्रे माय टीम हैज वॉन, सेड द कोच। बेटा ये सेंटेंस जो सेड द कोच या सेड अमित, ये बिगिनिंग पार्ट में भी आ सकता है या एंड ऑफ द पार्ट में भी आ सकता है। क्या समझे? वंस स्टॉप दिस एक्टिविटीज, इरेज कीजिए उसको जो आपने किया है। नाउ चेक डाउन। How beautiful the painting looks, said Amit. The painting looked very beautiful. Amit exclaimed, the painting looked very beautiful. अब देखो यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, पहले देखिएगा।
all of you know there that how beautiful the painting looks. ये सेंटेंस में देखिएगा जरा, how beautiful the painting looks. दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. अब इस सेंटेंस में जरा देखो, नोटिस कीजिए. Yes, sir. How beautiful the painting looks. Look, notice here. कौन सा मार्क है यहाँ? Exclamatory. Exclamation means sudden feelings. Listen carefully. Exclamation का मतलब होता है sudden feelings. अचानक आपके मन में कोई भाव आए, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं. तो sometime you will be happy, sometime you will be sad, or different feeling you have in your mind. Suppose, अब look here. How beautiful. Whenever you saw anything, आपने कुछ अच्छा चीज देखा. क्या देखा? तो पेंटिंग बहुत ही सुंदर है. The painting looks very beautiful, said Amit. तो look here in this sentence. आप यहाँ पर देखोगे, इस सेंटेंस में देखोगे कि अमित एक्सक्लेम, ये वाले पार्ट में आई होप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए. सेड के जगह एक्सक्लेम लगाया है. क्लियर है? अब ऑल ऑफ यू नो देयर दैट, लिसन केयरफुली, when there is exclamatory sentence, to connect that sentence we will use that in a exclam, because we had seen in a simple sentence also we are using connector या conjunction that. In a helping verb we are using what? Helping verb is a mark. अब इसमें उसी तरह से अब आप देखोगे in a interrogative sentence as a conjunction we are using, क्या यूज कर रहे थे? If या whether. That. And in a exclamatory sentence also we will use that. In a imperative sentence, जो imperative sentence होंगे उसमें हम क्या का इस्तेमाल करेंगे? to का इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है? Yes, sir. फिर से बता रहा हूं, imperative में if या whether का इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्या का इस्तेमाल करेंगे? to का इस्तेमाल करेंगे. exclamatory में that का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा इस सेंटेंस में, लुक हियर, दैट है दिया हुआ. Yes, sir. सेंटेंस को जोड़ दिया हमने. अब देखो बेटा, ऊपर वाले मत देखो, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स, ये आपके एक्सप्रेशन का भाव है, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग द थिंग्स. बट लुक हियर, इसी सेंटेंस को यहाँ नीचे चेंज कर दिया गया, द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. इसी को हमें चेंज करना है. तो लुक हियर, द पेंटिंग पहले आया, सब्जेक्ट है ना, पेंटिंग पहले आया, फिर लुक्स आया, फिर वेरी ब्यूटीफुल आया. तब यहाँ पे देखेंगे द पेंटिंग, तो लुक्स कौन सी टेंस है? Present. प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट. तो लुक हियर, लुक चेंज इनटू Looked. नाउ. लुक हियर, वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है यहाँ, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? वेरी ब्यूटीफुल. अब बेटा इसमें क्या डाउट है बताइए? वन मोर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जरा देखोगे. हुर्रे, हुर्रे मींस व्हाट? आप जीते या हारे? जीते. जीतने के बाद ही ना बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच. तो आपकी फीलिंग कैसी है? हाउ डू यू फील? Happy. हैप्पी. Happy. हैप्पी मोमेंट है ना, जॉय कर रहे हैं. तो अब यहाँ देखो, सेड द कोच, the coach said to the player or whoever they are expressing, the teammates are expressing their feelings. तो अब यहाँ पर देखोगे, the coach exclaimed, उनकी फीलिंग से exclaimed with joy. क्या आया? with joy that. यहाँ देखोगे that आ रहा है ना, यहाँ पे that connector. अब यहाँ पे देखोगे my team, whose team? कोच का. Coach team. कोच टीम, their team. अब यहाँ पे देखो, listen here, look here, has. Which tense? Past perfect. Past Has perfect. one बेटा. Present. Present perfect. Present Present perfect Present change perfect. into past Present perfect. perfect. Look here, had one. सारा रूल तो सेम है बेटा. अब फिर से यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बेटा इसमें थोड़ा टफ किया गया है आपको, थोड़ा सा ज्यादा हिला, तो इसमें आपको ट्विस्ट किया गया. ब्रेन टीजरिंग जिस तरह से मैथ्स में बनाते हो ना, उसी तरह यहाँ पर किया गया है. इसी कारण से थोड़ा कंफ्यूजन
आपके एग्जाम में जरा ये देखोगे, ये वाला देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हेलो, ठीक है, रखो क्लास कर। हाँ बेटा देखो वहां पे ध्यान दो, माय ग्रैंडमदर, इसमें ज्यादा समझोगे आप। द विलन ऑफ द मूवी दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कॉल्स आ जाते हैं बेटा, दैट्स व्हाई वी आर डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, दे आर कॉलिंग सो मेनी टाइम्स। नाउ लुक, अब यहाँ पे देखो बेटा, ऊपर वाले सेंटेंस को थोड़ा आप क्या करो, ये अभी इग्नोर करो, समझने के लिए देखो आप। माय ग्रैंडमदर सेड टू मी, लुक हियर, माय ग्रैंडमदर सेड टू मी, मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, है ना वहां पे। और दूसरे सेंटेंस में देखो, द विलन सेड, द विलन ऑफ द मूवी सेड, अलास हाउ इनकंसिडरेट आई हैव बीन। इसमें देखो सेंटेंस क्या है, हाउ कंसिडरेट, हाउ को, ये जो हाउ दिया हुआ है ना बेटा, ये हाउ, WH रिलेटिव प्रोनाउन, इस हाउ को हमें इग्नोर करके इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में अपने दिमाग में कन्वर्ट करना। You have to convert in your mind in a simple sentence. So in a simple sentence, all of you know there that subject will come first. ये I जो है पहले आएगा, फिर helping verb आएगा, फिर main verb आएगा। तो look here, I have been very considerate. All of you keep in your mind there that जो भी adjective होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, very, उसको और बढ़ाएंगे, ग्रेट या वेरी लगाएंगे। नाउन रहेगा तो ग्रेट लगाएंगे, एडजेक्टिव रहेगा तो वेरी लगाएंगे। अब यहां पर देखो, द विलन ऑफ द मूवी, इस लाइन में देखोगे, द विलन ऑफ द मूवी एक्सक्लेम्ड। अब ऑल ऑफ यू नो द वर्ड एलास, तो एलास का मतलब क्या, उदास, खेद व्यक्त कर रहे हैं, रिग्रेट, सॉरो, रिग्रेट या सोरो भी लिख सकते हो, बोथ सेंटेंस विल बी करेक्ट, बोथ वर्ड विल बी करेक्ट। And when we are combining these sentences, this word that, जब हम इसे जोड़ते हैं तो वहां पर क्या लगेगा, that। क्लियर है, सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, लिसन केयरफुली, यहाँ पे देखिए I have been, आप यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड है, I have been, जो सर्किल किया है मैंने, I have been। तो at here I change into who, he had been very inconsiderate। बेटा कहीं पर यहाँ पे डाउट है तो बताओ, आप दिमाग में इसको हाउ को, ये जो हाउ है ना बेटा, इसको इग्नोर करना है हमें, जो इंट्रोगेटिव वर्ड से उसे इग्नोर करना है और उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करके तब उसके टेंस को चेंज करना। क्या समझे? Yes, sir. जैसे आई हैव बीन, देखो इनकंसिडरेट आई हैव बीन, उसको हमें सिंपल सेंटेंस में ले आया, यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस में ले आया ताकि आपको आसानी से समझ में आए, तब उसके बाद हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। Sir, the villain is not asking from anyone. It is only telling. So Yeah. we have to ignore how. हाँ, वो अपने आप में एक्सप्रेस कर रहा है कि हाउ, बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग टू एनीवन। सही बोला आपने कि वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बताइए, वो क्या कर रहा है, अपने अंदर की फीलिंग्स को क्या कर रहा है, Only telling. यस, ओनली टेलिंग टू, या एक्सप्रेसिंग हिज आइडिया विथ हिमसेल्फ, नॉट एक्सप्रेसिंग टू एनीवन एल्स। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब बोलिए, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोलो, और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करें। No, sir. अब जरा सर देखो, पेज नंबर 33 का एग्जांपल 2 एक बार बता दीजिए, उसमें मैं पेज नंबर 30, ओके ओके, डी का यूज हुआ है। जरा देखते हैं, रुकिए। पेज नंबर 33, यस सर, पेज नंबर 33 क्वेश्चन 2। एलास आई फेल टू स्कोर गोल, ये वाला।
Yes, sir. Look here. Now listen. Alas, I failed to score a goal, said the player. अब यहाँ पे देखो सेंटेंस को, चेक डाउन सेंटेंस में यहाँ देखो 33. Now look. Alas, I failed to score a goal, said the player. अब इस सेंटेंस में देखो कि बेटा आई, यहाँ देखो इस सेंटेंस में एलास का मतलब क्या होता है, टेल मी. उदास, रिग्रेट है ना, उसके फीलिंग्स को एक्सप्लेन. बेटा इसको देखो अपने दिमाग में ध्यान रखो, सेड द प्लेयर को पहले ले आओगे. अब यहाँ पे देखो द प्लेयर रिग्रेटेड, लिसन केयरफुली, द प्लेयर रिग्रेटेड दिख रहा है. यहाँ पे देखो दो एक्सक्लामेशन मार्क को दिया हुआ है, या तो रिग्रेटेड लिख सकते हो या एक्सक्लेम विथ सोरो, दोनों सही है बेटा. या तो रिग्रेटेड करोगे तो एक्सक्लेम विथ सोरो नहीं लिखोगे, और एक्सक्लेम विथ सोरो लिखोगे दो तरीके से, टू टाइप्स, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट. मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा टीचर कुछ दूसरा रूल पढ़ाएंगे, दो तरीके से ये बनता है. या तो एक्सक्लेम विथ सोरो लिखोगे या फिर रिग्रेटेड लिखोगे. आई होप यहाँ पे कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा. Yes, sir. ठीक है, वो एक्सक्लामेशन मार्क दिया है, आपको ऑप्शन दिया है, या तो इफ यू विल यूज द वर्ड रिग्रेटेड, अदरवाइज यू विल यूज द वर्ड एक्सक्लेम विथ सॉरो. आफ्टर दैट चेक डाउन, एक्सक्लेम विथ सॉरो के बाद देखो यहाँ दैट लगा है कनेक्टर, बिकॉज इट इज अ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. नाउ चेक डाउन, आई फेल टू स्कोर अ गोल. उसमें जो प्लेयर है, द प्लेयर एक्सक्लेम कर रहा है, उसीलिए हमने यहां पर लिख दिया दे फेल्ड. जब कोच से पूछा गया आई को, यहाँ दे हैड फेल्ड टू स्कोर अ गोल. प्लेयर सारे मिल करके वहां बातें कर रहे हैं, बिकॉज उस टीम के फेलुअर का क्या कारण था. बेटा ये जो कोमा, ये इन्वर्ट सॉरी ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है, ये आपको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, सेंटेंस नहीं है वो. क्योंकि आई फेल टू स्कोर गोल यहां पर जो कह रहा है, ये टीममेट्स पूरे मिल के कह रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग देयर दे. आप चाहते तो वहां ही भी लगा सकते थे. जित क्लियर ना हो? Yes, sir. अब समझ में आ रहा है ना? उसी तरह देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देखो, द फार्मर सेड व्हाट अ पीटी द ड्राउट स्पॉइल द क्रॉप. अब ये देखो यहाँ पे फार्मर की फसल बर्बाद हुई है बारिश कम होने के कारण, इसीलिए यहाँ पे देखो द फार्मर एक्सक्लेम दैट इट वाज अ पीटी, या फिर आप बोल सकते थे एक्सप्लेन विथ सॉरो भी बोल सकते थे आप. क्लियर है? तो व्हाट अ पीटी को चेंज करेंगे, इट इज अ पीटी. व्हाट अ पीटी को चेंज करेंगे, इट इज अ पीटी. क्लियर? तो वही चीज को देखो, इट वाज अ पीटी. सेंटेंस जब सेड रहेगा, ध्यान दो यहां क्या है हमारा, पास्ट टेंस, सेड है ना, इसीलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, was. यहाँ क्या लगाया, was. It is PT Was. changed into it was PT that the drought had spoiled the crop. तो ये that को हमने यहाँ पर लाया है, ये देखो यहाँ कनेक्टर के रूप में. It was PT the drought had spoiled the crop. सेम थिंग इसमें देखिए, I wish I had. यहाँ देखो बेटा ये वर्ड क्या है, wish है ना. Look here, ये wish Yes, वर्ड है, sir. तो एक्सक्लेम Yes, की जगह sir. हमने विश का इस्तेमाल कर दिया है. एक्सक्लेम की Yes, जगह sir. क्या का इस्तेमाल कर दिया, विश. wish, अब ये Wish. सेड है, यहाँ चेक डाउन, सेड है ना, तो विश चेंज इनटू विज्ड. तो ये चीज देखो, Wished. अमित विज्ड, अमित ने क्या किया, विज्ड किया, अमित विज्ड दैट. कनेक्टर है ना दैट. अब वो कौन, Yes, sir. अनीता लड़का है या लड़की है, लड़की. लड़के में बात कर रही है वहां पे, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, सी. She. हैड, यहाँ ध्यान दो, दो बार हैड क्यों है, टेल मी ऑल ऑफ यू. सर एक हेल्पिंग वर्ब है यस, और एक और पास्ट एक टेंस के verb लिए. और एक पास्ट टेंस है ना. यस सर, पास्ट टेंस के लिए. ओके, पास्ट परफेक्ट. अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए.
नो सर। नो सर। अब आ जाए पीछे। यस सर। Yes. Clear है? बेटा वहां देखो हैड हैड क्यों इस्तेमाल हुआ? हैड इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि एक हेड तो हमें चाहिए था उस टेंस के लिए। क्लियर है? एक हेड हमें चाहिए यस था सर। उस टेंस के लिए चाहिए था। पास्ट परफेक्ट। हाँ, हेड प्लस हेड। क्लियर है ना? यहाँ पे आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हेड हमने उसके लिए लगाया था और दूसरा हेड हमने इसके लिए लगा दिया। हेड प्लस हेड, एक हेड पहले से दिया हुआ है। Helping verb Helping plus verb था past tense. क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे वहां पर क्या कर रहे हैं, ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग। सुनाओ लुक हियर। अब इसमें जरा देखोगे, टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं हम। दिख रहा होगा आपको? जरा देखो बेटा, No, सर sir. क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे देखो यहाँ पे, अगर सेंटेंस में हैड है, सेंटेंस में अगर हैड का इस्तेमाल होगा, क्लियर है? सेंटेंस में क्या का इस्तेमाल होगा? हैड का इस्तेमाल होगा। हैड। तो आप देखो यहाँ पे कितना HAD हैड है ना, और एक हेड हमें और ऐड करना, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो हैड ऑलवेज कैरी V3, हैज हैव हैड, इसीलिए वहां पर 2 बार हैड है। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। एक हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है और एक हेड आपका V3 फॉर्म है। इज इट क्लियर? इसीलिए वहां पर 2 बार हैड है। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। टेल मी। यस सर। अब जरा देखो, अब उसी में हम लोग देखते हैं, आगे बढ़े दूसरे चैप्टर में कि इसी को कंप्लीट, क्योंकि 5 मिनट्स इज लेफ्ट नाउ। 5 मिनट्स है, क्योंकि मॉडल्स भी आज देखना था बेटा हमें। अच्छा देखो, एक एग्जांपल पे ही समझाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल, सिर्फ सेंटेंस में हम देखो, आई प्ले, PLAY प्ले फुटबॉल। आई होप विजिबल है सारे बच्चे को? यस सर। Yes. यस देखो बेटा यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगाया हमने, फुल स्टॉप, आई प्ले फुटबॉल, है ना? जब हम इसे चेंज करेंगे किस सेंटेंस में, जब इसे हम चेंज करते हैं किसमें, ये मान लो डायरेक्ट है, राम से टू करके बना रहे हैं हम, राम से टू मोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा, Reported. और सेंटेंस सिर्फ है आई प्ले फुटबॉल। तो आई प्ले फुटबॉल को हम लोग क्या में चेंज करेंगे? Indirect. इनडायरेक्ट में जब चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे चेंज? आई Ram. राम से Object टू को मोहन आई first- प्ले, मान लीजिए राम मोहन, तो आई की जगह क्या लगा देंगे हम? ही। He. पूरा He. सेंटेंस पता है? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? No, sir. सर आई तो अपने आप को डिनोट कर रहे हैं ना। या तो मान लीजिए राम, तो राम के लिए मान लो आप किसी से दूसरे से बात कर रहे हो, अगर लड़का है या लड़की है, राम से टू मोहन, यस राम sir. से टू मोहन, तब क्या होगा वहां पे? तो राम किसी He से, तो राम played. लड़का है ना, सन रूल याद He कीजिए। आई एम टेलिंग एक्सप्रेसिंग यू अबाउट सन रूल, SON सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? He. ही क्लियर? यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ही। He. तो ही क्या हो जाएगा? स्मॉल होगा। प्ले की जगह क्या हो जाएगा? प्लेड। PLAYED प्लेड। क्लियर? Played. और क्या खेल रहे थे हम लोग? Football. फुटबॉल। FOOTBAL। और कौन सा मार्क रहेगा? फुल स्टॉप। Full stop. फुल Full स्टॉप। stop. चलिए फिर से हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखो दूसरा एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, सपोज यहां पे हो ही, अगर यहां पे हो जाए आई की जगह पर ही,
क्लियर है? कैपिटल कर देते हैं। क्योंकि टाइम टेकिंग होगा मगर आप तभी समझोगे। ही प्लेड, ठीक है, PLAYED, प्लेड फुटबॉल। अब इसको चेंज कीजिए स्टूडेंट, चेंज इट फुल स्टॉप में। Ram said to Mohan that दैट, he played बेटा ही है तो वहां पे क्या लगाओगे? He had played football. he had He had, good. He had Ball. He had played, played football. LAYED, played फुटबॉल। Ball. football. क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? ये पास्ट टेंस में है सेंटेंस। अगर इसी में देखो, इसी में अगर हम करते हैं, अब तो सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा सर क्या बोलना चाह रहे थे। अब इसी में जरा Yes, देखो sir. दूसरा चीज होगा। मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही was playing football. He had been He was playing, आपके एग्जाम में इसी तरह बेटा आपका जो होगा वो एब्सेंट रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। He was playing football. Convert it. He had been Ram playing told to football. Mohan that he had been playing football. He was He had been playing playing football. तो अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया वहां, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? He had been playing football. या he Had been playing had football. been playing Football. football, Football. FOOT, फुटबॉल। अब तो समझ में आया होगा? Yes, sir. अब देखो Yes, नेक्स्ट sir. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखो। तो हमने यहाँ पे देखा प्रेजेंट पास्ट, अब इसी में देखोगे दूसरा है। मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दिया है कि व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट इज योर नेम। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाट इज योर, सॉरी टाइम इज ऑल्सो बेटा, अच्छा क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा है यहाँ पे, जैसे व्हाट इज योर नेम कैसे चेंज करेंगे? What was my name? नहीं, व्हाट इज योर, ये आपके एग्जाम में आया था बेटा ये एग्जांपल, इसीलिए मैं आपको राइट कर रहा हूं। व्हाट इज योर नेम, NAME, नेम, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे व्हाट योर नेम वाज। क्या में चेंज करेंगे? What What your जो name? small What your letter- name was? What your name was? was, क्योंकि आप देख रहे हैं इज पहले लगा है या नहीं लगा है? Yes, sir. व्हाट का W स्मॉल होगा, व्हाट। अब यहाँ पे हमने लाया योर पहले, उसके बाद लाएंगे नेम, सब्जेक्ट है ना योर नेम। Yes, sir. कोई डाउट है Yes, किसी को sir. तो बोलो। योर No, नेम, sir. No, sir. व्हाट Was. योर नेम, रिपुंजय स्टॉप डूइंग योर एक्टिविटी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले आया है। आप लोग सोचते होंगे नहीं दिख रहा है यहाँ। व्हाट योर नेम वाज, क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा मार्क लगाओगे? फुल स्टॉप। कौन सा मार्क? Full stop. Full फुल stop. स्टॉप, Full stop. क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर ये किससे पूछा जा रहा है? अब मान लो कि राम सेड टू यू या राम सेड सीता, व्हाट इज योर नेम,